Hi, I'm Aditya Matai. I'm a student of class 11th Commerce and I live in Goregaon. So, the other day, my grandfather, who is 79 years old, was defrauded by this fraudster and lost around 18,000 rupees from his savings account. Then, a couple of days later, there was 3-4 cases of the same thing in my condominium where people lost their money from the savings account, credit cards, PTN, etc. So I thought, why not start a podcast about it? We know, we have heard banks keep telling us to be aware of such scams and frauds, but I felt that there was not enough content online about this particular topic. With over 100 billion transactions happening every year over UPI in our country, this is only increasing the opportunity for fraudsters to defraud people like us. As UPI and digital payment infrastructure, credit card, etc., are growing every year and the prominence is increasing every year, I feel like this is only creating opportunity for defrauders to fraud people like us. So I've thought of starting a podcast which will have 6 episodes, and each episode we will have with us victims who have been part of such frauds. We will talk about the different types of frauds and fraudsters, but most importantly, we will have with us Mr. Vinod Singhal, who is the head of the Claims and Fraud Department at CPP Group. Hello everyone, I'm Vinod Singhal. Having more than 20 years of experience in fraud detection, working on the different type of frauds which is currently going on in the market, and how to detect that and how we can educate people regarding these frauds and how can we can prevent this. Thank you for coming on the show, sir. Thank you. In this series, the first fraud we'll discuss about is called digital arrest. We have Mr. Kapil Bansal with us, who is a victim of this fraud, and he will tell us more about what happened with him. Hello, Kapil sir. Thank you for being on the show. So, Kapil sir, आपके बाद exactly क्या हुआ? Thanks Aditya. So what happened was the other day I got a call from a company and they were very randomly named and they said that they received a query on my name. एंड उन्होंने मेरे को मेरा नाम बोला, उन्होंने मेरे को मेरा लोकल एड्रेस कंफर्म किया एंड विच मेड मी बिलीव दैट दे आर जेन्युइन एंड आई सेड दैट ओके डिलीवर इट. दे सेड दैट प्रॉबेबली कुछ जो कंटेंट्स है उसके अंदर वो क्वेश्चनेबल है, उनके स्कैम में कुछ क्वेश्चनेबल कंटेंट्स आए हैं, विच इज़ वाई दे नीड टू टेक सम इमीडिएट एक्शन ऑन दैट. एंड दे ट्रांसफर्ड माई कॉल टू अ सो कॉल्ड लॉयर एंड द लॉयर सेड दैट द कंटेंट्स ऑफ दिस आर क्वेश्चनेबल. आप कॉल कट नहीं कर सकते अभी और आपको इमीडिएटली मेरे को हायर करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी लीगल एक्शन ऑन यू बिकॉज दिस पार्सल हैज कम फ्रॉम दुबई एंड वी डोंट नो what is there in it. And they gave me UPI details and they asked me to transfer 25,000 rupees, otherwise they will take legal action against me. Obviously as a law abiding citizen मैं घबरा गया, मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, सामने से लॉयर बात कर रहा है. क्योंकि उन्होंने मेरा नाम और एड्रेस मुझे कंफर्म किया था, मुझे लगा कि मेरे अगेंस्ट ही पार्सल आया होगा. सो आई इमीडिएटली ट्रांसफर 25,000 रुपीज़ एंड वाइल आई वॉज ऑन द कॉल दे असिस्टेड मी हाउ टू ट्रांसफर द मनी. एंड एज सून एज द मनी वॉज ट्रांसफर्ड they said that they are going to call me back after 5 minutes after the money is realized in their bank account. And I kept on waiting but they did not call. उसके बाद मैंने आधे घंटे तक वेट किया. मैंने कुछ 2-3 फ्रेंड्स को अपने कॉल किया कि यार ऐसा हुआ है, व्हाट कैन आई डू. ऑब्वियसली जिस नंबर पे मुझे कॉल आया था आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट इट. तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि यार मोस्ट प्रॉब्ली आपके साथ फ्रॉड हुआ है. सो दिस इज व्हाट इज हैपन. हेलो सर. तो सर जैसे आपने कपिल जी से सुना कि कैसे उनके साथ डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड, तो एग्जैक्टली डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? आदित्य, द ओनली थिंग इज आई वुड से हियर कि डिजिटल अरेस्ट नॉर्मल कोर्स में अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे कोई भी फिजिकल एंटिटी प्रेजेंट नहीं है, सब कुछ जो कम्युनिकेशन हो रहा है कस्टमर के साथ या जो फ्रॉड जिसके साथ हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, मतलब कि कैमरे से या फिर वीडियो कॉल्स पे जनरली किया जा रहा है. तो सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि कोई फिजिकल पुलिस या कोई भी प्रेजेंट नहीं है, कस्टमर को कॉल किया जा रहा है. यू वांट दे मेक श्योर के कस्टमर विल फील फियर लाइक, ताकि वो उनको आगे पैसा देगा. अगर वो फियर नहीं होगा, वो क्रिएट नहीं करेंगे, तो कभी भी पैसा उनको नहीं मिलेगा. तो डिजिटल अरेस्ट में यही होता है कि आपको डराया जाता है, कस्टमर्स को डराया जाता है.
उनको बोला जाता है कि आपके लीगल एक्शन होगा, आपको जेल हो सकती है, आपको गवर्नमेंट मतलब कि आपको कुछ लीगल एक्शन या पुलिस कस्टडी हो सकती है, जिसकी वजह से कस्टमर या जो पर्सन है जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है वो डर जाता है और जो भी वो कहता है उसको मानता है वो सारी चीज़ें। और तो किसी को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए डिजिटल अरेस्ट में मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि एज पर माई एक्सपीरियंस, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो क्योंकि ये सारा रिलेटेड टू फियर है, अगर आप डरेंगे नहीं, डोंट टेक एनी इमीडिएट एक्शंस ऑन दैट। सुनिए बात, आराम से सुनिए, उनको देखिए, प्लस फर्स्ट वेरीफाई कि आपको कॉल जहाँ से आ रहा है या क्या हो रहा है, क्योंकि दीज फ्रॉडस्टर दे यूज कॉल स्पूफिंग टेक्निक्स इन दैट। उसमें क्या होता है कि आपको लगेगा कि नंबर तो इंडियन नंबर है पर एक्चुअली इट वॉज अ इंटरनेशनल नंबर, तो आपको पता ही नहीं होता क्या होता है। और जो इमेजेस आपको या वीडियो कॉल पे जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली प्रेजेंट होगा ही नहीं, दैट इज अ एडिटेड इमेजेस विच दे यूज और डू दिस। तो आपको सबसे पहले काम रहना है, आपको उनकी बात सुने, पूरी बात सुने और अपने चीज़ों को वेरीफाई करें कि क्या आप ये सोचे कि जो कुरियर जिसका वो रेफर कर रहे हैं क्या वो कुरियर एक्चुअली आपका आना भी था या आपने भेजा भी था, पहले वो मेक श्योर दैट थिंग, क्योंकि ये आपको डराएंगे तभी ये पैसा ले पाएंगे। अगर आप डरेंगे नहीं तो शायद ये केस आप पेमेंट कर सकें। अगर आपके साथ फ्रॉड हो भी जाता है इन केस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में कस्टमर डर के कर भी देता है, पैसा ट्रांसफर कर देता है। और कपिल जी तो मैं ये यहाँ पे ये कहूँगा कि वो शायद लकी थे कि उनके साथ सिर्फ 25,000 रुपये आगे रुक गया, पर देर आर केसेस जिसमें बार बार उनको बोला जाता है कि पैसा और ट्रांसफ़र कीजिए, मल्टीपल अकाउंट्स भी कीजिए, वरना आपके साथ और ज़्यादा मतलब कि आपको लाइबिलिटी हो सकती है या फिर अरेस्ट हो सकता है, सीवियर जेल्स हो सकती है, कोर्ट केसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए तो बेटर है कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी हेल्पलाइंस इसके लिए और एजुकेशन SMS वगैरह सब कुछ भेजे हुए हैं, कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं, टाइम टू टाइम एजुकेट करते हैं। द फर्स्ट थिंग आई विल से कि किसी भी कस्टमर के साथ जिसके साथ ऐसा होता है, he should call on 1930. It's a helpline portal issued by the government of India. 1930 पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराए। NCP पोर्टल जो है नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पर आप जाके रिपोर्ट करिए। अगर आप विद इन 24 या 48 आवर्स में रिपोर्ट कर देते हैं तो यू माइट गेट योर मनी बैक, क्योंकि उस पर इमीडिएट एक्शन होता है, गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन लेती है। देयर इज टीम विच इमीडिएटली टेक एक्शन ऑन दैट, और वो जो भी अकाउंट में पैसा वो ट्रांसफर हुआ है हो सकता है उसको ब्लॉक करके आपका मनी आपको वापस लाने में हेल्प कर सकते हैं। और अगर कोई इस सिचुएशन में है तो इसका रिक्वेस्ट कैसे पैसे वापस मिल सकते हैं? आपका लूज हो गया था। यहाँ से बिल्कुल मिल सकते हैं, देयर आर चांसेस, क्योंकि अगर आपने टाइमली गवर्नमेंट के पोर्टल पे कंप्लेंट कर दिया, 1930 पे कंप्लेंट कर दिया या अपने बैंक में कंप्लेंट कर दिया, देयर इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच हैज हैपेंड जस्ट नाउ व्हिच इज अ फ्रॉड ट्रांजैक्शन, तो बैंक जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं वो सारा एक्शन लेके जिस अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हुआ है उसको ब्लॉक कर सकते हैं और शायद आपको वो पैसा वापस आ भी सकता है। Thank you, sir. So in today's episode, we saw how digital arrest works. We had a victim. He told us how the whole thing happened, and then we had an expert with us, Mr. Vinod Singhal, who told us more about the digital arrest fraud. So मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप प्लीज़ 1930 फ़ोन नंबर पे कॉल करें या आप डिजिटल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाके एड्रेस करें ये इशू। और बाकी फ्रॉड्स के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड में प्लीज़ ट्यूनिंग करें। थैंक यू भाई।